Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra, I'm preacher of Bhagavad Gita, and today I'm going to talk about dharana and how to get more focus in our work. This is a part of Ashtanga Yoga, Dharana, Dhyan and Samadhi, and I'm going to talk about how to get focus in our work, how to develop ourself more focus in our work, means focus mind. How will we get? So before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is, written by Sri Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON Temple, and this is the most authentic source, and this is a best version of Srimad Bhagavad Gita. And I would say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense, it's pure book of the science and humanity. And I'm trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita, and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempt to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. So let's start how to get more focus in our work. मतलब एक पावर ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन कैसे डेवलप करें, अपने काम में कैसे फोकस रहे, हम अपने कभी भी भटके नहीं अपनी राह से, कैसे अपने काम के साथ जुड़े रहे, काम में मतलब टोट एलिफेंटाइन फोकस. हाउ विल वी गेट? we can only get from Srimad Bhagavad Gita. How? I will make all of you understand. But before I talk about Dharana and Srimad Bhagavad Gita, both relation, I want to talk about Dharana. What is Dharana? As per Ashtanga Yoga, Dharana means collection or concentration of the mind, means collection, recalling of all our past experience, memories and all things. We have to join with the retention of the breath, means if we can control our breath, our sleep cycle and breath cycle, as well as our eating habit, then we can get more focus. It will directly impact on our body and on our mind. Our food habit, our sleeping cycle, if we sleep more whatever we required, if we not sleep enough, then it will directly focus on our memory, on our focus or concentration. So Lord Krishna stated in Srimad Bhagavad Gita, the person, listen it very carefully, yogi means perfect, says perfect purusha, the person who is not able to the person who is not able to manage his sleeping cycle, means in short I would like to say the person who is sleeping more and the person who is sleeping very less, not enough, and the person who is eating too much and too less, that person will never become a yogi. And the person who is not yogi, that person memories or dharana is very low. This is stated in Srimad Bhagavad Gita. How to get more focus, means कैसे मतलब ज़्यादा फोकस रहे, then you have to concentrate on a one point. You have to remove yourself from the material disturbances, or you have to remove yourself, you have to totally detach from material things or moha maya, means outer disturbance. You have never been agitated yourself. So Lord Krishna state, to act of holding, bearing, wearing, supporting, maintaining, retaining, keeping back a good memory, that is called dharana. Actually someone told me you have to make a video on dharana and Srimad Bhagavad Gita, concentration, patience and Srimad Bhagavad Gita. The particular person who doesn't has a patience, that particular person will never become a yogi and he will never get Supreme Personality of Godhead Lord Krishna. And steadfastness and certainty. How will we get a certainty? Elephantine focus. शिला प्रभुपाद जी थे, वो मतलब 4 घंटे ओनली सोते थे और बाकी वो बुक लिखते थे और लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करते थे. Then he had developed elephantine focus on the basis of Srimad Bhagavad Gita. After reading of multiple time of reading of Srimad Bhagavad Gita, we can easily get elephantine focus or focus on one point, like Arjuna's focus, like a Lord Krishna's focus on his devotee. Lord Krishna will never
fall down his devotee. He will never let down his devotee. Lord Krishna will love his devotee, and we can win over Lord Krishna only and only with one weapon, that is called love or devotion. There is no difference between love and devotion. Lord Krishna stated धारणा, concentration कैसे करें, अपने आप को फोकस कैसे रखें. तो Lord Krishna stated in chapter number 3 कर्म योग. Here Arjuna asked on behalf of all of us before more than 5,000 years ago. Arjuna asked, however I don't want to involve, however I don't want to attach in these sinful activities, but what kind of that force which impelled me to involve in these particular sinful activities? Arjuna here asked, verse number 36, chapter number 3, अथ केन प्रयुक्तो पापचरित पुरुष अनिच्छनापि वासाण्या बलादिवा नियोजित. एक कौन सी एनर्जी जो मुझे फोर्स कर रही है और पाप युक्त कार्य में मुझे डाल रही है. मेरी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी मुझे पाप में कौन गिरा रहा है, पाप युक्त कार्य मुझसे कौन करवा रहा है. Means Arjuna asked to Lord Krishna, O descendant of Vishnu, O Vishnu के अवतार Lord Krishna, by what is one impelled to sinful acts. मतलब कौन सी ऐसी शक्ति है जो एक व्यक्ति को पाप युक्त कार्य करवाती है, इवन अनविलिंगली, एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स. उसकी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उसको फोर्सफुली कौन उसको पाप में घिरा रहता है. मतलब पाप में उसको कौन डालता रहता है, कौन सी ऐसी एनर्जी है उसको फोर्स करती है पाप में डालने की. यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, धारणा क्या है, हाउ टू गेट अ मोर फोकस इन अवर वर्क, आई एम गोइंग टू टेल. लॉर्ड कृष्ण हियर स्टेटेड. भगवान यहाँ पे कहते हैं, भगवान क्या यहाँ पे क्या कहते हैं, काम इस क्रोध इस रजोगुण समृद्ध, काम इस क्रोध इस रजोगुण समृद्ध, महासनो महापापो, विज्ञानियम वैरिण, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है. कौन दुश्मन है? कामना. तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो अपेक्षा है, वही तुम्हारे दुश्मन है. वही तुम्हारे धारणा, जो तुम्हारा फोकस है, उसके बार बार तुम्हें एजिटेट करती है. तुम्हारी जो इच्छा है, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होगा कि इच्छा के बलबूते पे ही, अगर हमने इच्छा ही डेवलप नहीं की तो हम फोकस कैसे रह पाएंगे. अगर आप इच्छा रहित रहोगे तभी आप फोकस रहोगे. अगर आपका इच्छा होगी तब आपका मन डुलता रहेगा, हिलता रहेगा, आपका मन एजिटेटिंग होता रहेगा. यू डोंट हैव टू fall down in this material things. You have to focus, you have to totally involve in the devotion of Lord Krishna. यहाँ पे क्या कहते हैं, काम इस क्रोध इस रजोगुण समृद्ध, महासनो महापापो, विज्ञानम वैरिण. The supreme personality of Godhead state, it is lust only. Lust means here Lord Krishna said lust means any desire which one is outside from your goal, from your focus. तुम्हारा जो फोकस है, मतलब हम सबका फोकस है, उसे जो आउटसाइड हम इच्छाएं डेवलप कर रहे हैं, वही हमारी धारणा को लो बनाती है, हमारे जो कंसंट्रेशन को लो बनाती है, हमारे जो फोकस को लो बनाती है. इट इज लस्ट ओनली, हमारी इच्छा है. अर्जुना, विच इज बॉर्न ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द मटेरियल मोड ऑफ फैशन, जो रजोगुण से समृद्ध होती है, जो रजोगुण से जिसका जन्म होता है, जो हमारी इच्छा है, कामना है, उसी से हमारा जो होता है, हमारा जो फोकस होता है वो हिल जाता है. Later transfer into the wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world. दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हैं, हमारी अपेक्षाएं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. दिस इज स्टेटेड बाय लॉर्ड कृष्णा. से भगवान उवाच. लॉर्ड कृष्ण आगे कहते हैं, धूम्रे न व्रियते व्रियोत्वा दशा मले न चह, यथो बले न वृत्त हो गर्भस्था तदे न आवृतम. आवरण कर लेगा. कैसे आवरण करेगा? एज अ फायर इज कवर्ड बाय स्मोक. जैसे धुआं होता है उसको स्मोक कवर कर लेता है, अग्नि को जैसे धुआं कवर कर लेता है. एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट. जो मिरर होता है, जो आईना होता है, उसको डस्ट कवर कर लेता है, धूल जम जाती है उसके ऊपर. एज अ एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वॉर्म, एंड द लिविंग एंटिटी सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्री ऑफ द लस्ट.
जो लिविंग एंटिटी होता है उस हर एक मन में, हर एक व्यक्ति के हृदय में इच्छा होती है और इच्छा से इतना गिर जाता है तो अपना वास्तविक रूप है, जो सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट है, वो कभी देख ही नहीं पाता। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं वही जो तुम्हारा जो फोकस है ना, तुम्हें बार बार फोकस से क्यों हिलना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बार बार फोकस से हिला रही है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, देन यू विल हैव अ मोर फोकस। जो साधु संत होते हैं, जो मुनि होते हैं, उनके अंदर इच्छाएं नहीं होती। अभी के मुनि बात नहीं करो, आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट सेज, जो उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं होती। दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगतस्पृह वित राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। मैं ऐसे मुनि की बात कर रहा हूँ जिनका मन दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेते। जो मुनि, वो जो व्यक्ति भय राग और द्वेष से परिबड़ों से दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सेज ऑफ स्टेडी माइंड कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को परफेक्ट मुनि, स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है। जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, जो परफेक्ट मतलब परफेक्ट सेज होता है, जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, वो कभी भी उसका फोकस बहुत एलिफेंटाइन फोकस होता है, उसका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और कभी भी अपनी राह से भटक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होगा। जिसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट desire, I am only talking about determination. If you are having a strong determination, then no one can agitate you from your way, no one can fluctuate you from your way. उसके बाद लॉर्ड कृष्णा कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णे अनलेन च। मतलब एक कामना है, एक कामना के रूप में आता है पार्थ अर्जुन, है कामना के रूप में आता है। आवृतम, तुम्हारा जो ज्ञान होगा उसको घेर लेगा। धारणा क्या है? हमारी धारणा, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, उसको हमारी कामना, इच्छाएं घेर लेंगी, इतना घेर लेंगी, इतना घेर लेंगी, जो हमारा वास्तविक ज्ञान है वो सभी हम भूल जाएंगे। मतलब हम किसके लिए फोकस कर रहे हैं, कौन से काम के लिए फोकस कर रहे हैं, वही हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं हमें इतना भटका देती है। वो आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णे अनलेन च। जो कामना के रूप में आता है, जो एक दुष्पूर्ण है, मतलब एक फायर, एक हमारी इच्छाएं होती है ना, उसको कितनी भी कंप्लीट करो, वो हमेशा अग्नि की तरह हमारे हृदय में हमेशा जलती रहती। एक इच्छा को कंप्लीट करो तो दूसरी जाग जाएंगी, दूसरी इच्छा को कंप्लीट करो तीसरी आ जाएंगी। तो इच्छा का कोई मतलब, इच्छा को कंप्लीट करने का कोई वो होता ही नहीं। इच्छा को कोई भी कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। मतलब अगर किसी की इच्छा अपेक्षा, कोई भी व्यक्ति किसी की इच्छा और अपेक्षा को पूर्ण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इच्छा और अपेक्षा हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है। सामने वाले की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, प्रबल इच्छा, सामने वाले की इच्छा पूर्ण करने की, पर उसकी हर एक कोशिश के बावजूद भी किसी की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारी इच्छा और हमारी अपेक्षा ही हमारा जो फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, उसका कारण है धारणा से हमें भटका देता है। इसीलिए इच्छा रहित हो जाओ, इच्छा से विमुक्त हो जाओ, तभी तुम पार्थ एक फोकस हो पाओगे, अपने काम के लिए फोकस कर पाओगे, फोकसिंग हो पाओगे। Thus, the wise living entity's pure consciousness become covered by his eternal enemy in the form of lust. जो wise living entity होते हैं, उनको क्या होता है, उनका जो लस्ट होता है उनको कवर कर लेता है। एंड नेवर सेटिस्फाई विच बर्न लाइक अ फायर। लस्ट विल नेवर सेटिस्फाई। जो हमारी कामनाएं है, हमारी जो इच्छा है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, वो हमेशा बर्न लाइक अ फायर, इट विल बी बर्न लाइक फायर। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोहते ऐश ज्ञान आवृतम देहिन। मतलब हमारी जो क्या बोलते इंद्रियाणी, हमारी जो कामनाएं, हमारी जो इच्छाएं कहाँ पे रहती है, हमारी जो मतलब कामनाएं, हमारी जो इच्छाएं कहाँ पे रहती है, सेंस माइंड एंड इंटेलिजेंस आर सिटिंग प्लेस ऑफ द लस्ट। हमारी जो इच्छाएं कहाँ पे रहती है, हमारी इच्छा, हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों, हमारा माइंड, हमारा दिमाग और हमारी बुद्धि, दिस ऑल आर सिटिंग प्लेस ऑफ आवर लस्ट, आवर डिजायर, जो हमें बार बार भटकाती रहती है। अगर हमारी इच्छा के ऊपर हमने काबू कर लिया ना, देन वी विल श्योरली गेट एलिफेंटाइन फोकस। हम अपने काम के लिए इतना निष्ठावान हो जाएंगे, हम इतना फोकस हो जाएंगे, चाहे एक बार पढ़ लिया, 1000 बार पढ़ लिया, 1000 बार पढ़ लिया, उसके बराबर एक बार पढ़ लिया हो जाएगा। तो मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या है,
उनको टोटली उस चीज़ में टोटली इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर धारणा करनी है, अगर हमारे फोकस करना है तो टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर आप ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हो, अगर आपका जो स्पिरिचुअल मास्टर है उसको आपको टोटली सरेंडर करना पड़ेगा। अगर कोई मतलब आपका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ना हो तो आपको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं सेंसेस द माइंड एंड इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेस ऑफ द लस्ट एंड थ्रू देम लस्ट कवर विद अ रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिविल्डर हिम। जो हमें बार बार भटका देती है, जो हमारा कंसंट्रेशन फोकस है हिला देती है, हमारा फोकस कंसंट्रेशन हमें हटा देती है। तो हमारी इच्छाएं कहाँ पे रहती है? हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों, हमारा माइंड, हमारा मन और हमारे बुद्धि, वहां पे हमारी सेंसेस रहती है। जो हमारी जो अपेक्षा है वो रहती है और हमें बार बार फटका देती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते तस्माद इंद्रियाणि आदु नियम्य भारतवर्ष। तस्माद इंद्रियाणि आदु नियम्य भारतवर्ष। इसीलिए क्या करो? तुरंत ही पाप प्रजहि एन ज्ञान विज्ञान नाशनम। अदरवाइज तुम्हें इतना भटका देंगे, इतना भटका। इमीडिएटली क्या करो पता है? रेगुलेट योर सेंसेस वेरी बिगिनिंग टू कर्ब योर ग्रेट सिंबल ऑफ लस्ट। अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या करो? रेगुलेटिंग द सेंसेस। अपनी जो सेंसेस है, इंद्रिय है, उसको रेगुलेट करो। उसको कंट्रोल, इंद्रियों को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको खाली रेगुलेट किया जा सकता है। आंख है, आंख तो देखेंगी, मुंह है तो बोलेगा, कान है तो सुनेंगे, जीभ है तो मतलब बोलेंगी, और जो त्वचा है तो टच करेंगी। तो 5 सेंसरी ऑर्गन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका कार्य होता है कि मतलब हम कंट्रोल कैसे कर सकते, रेगुलेट कैसे कर सकते? क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या टच करना है, उसके ऊपर, और क्या सूंघना है। अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया ना 5 सेंसरी ऑर्गन को, then we can easily overcome from the expectation and desire, then we can get elephantine focus। हमें elephantine focus आ जाएगा उसी से। इसीलिए क्या कहते हैं? ग्रेट सिंबल ऑफ द लस्ट बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस एंड स्ले द डिस्ट्रॉयर ऑफ द नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अदरवाइज क्या करेंगे? हमारी इच्छाएं, हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको नाश कर देंगी, तबाह कर देंगी उसको। उसके बाद क्या कहते हैं? Working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Mind is always higher than the senses, and the intelligence still higher than the mind, and the soul is still higher than the intelligence. तो सबसे ऊपर है soul है, उसके नीचे है intelligence, उसके नीचे है mind और उसके नीचे है senses। अगर हमने ascending way में गए, अगर हमने senses को control कर लिया, regulate कर लिया, then we can control our mind. And if we control our mind, then we can easily control our intelligence. Then we can, if we can easily control our intelligence, then we can easily control our soul. And the person who has control his soul, that particular person will never get any kind of agitation. No one can disturb him. He will surely get elephantine focus. So this is all about dharana, मतलब कलेक्शन, हाउ टू बी फोकस इन अवर वर्क। तो मतलब हम अपनी इच्छा है, हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, इच्छा के अनुसार अगर हम अपना जो स्लीप एंड वेक साइकिल है उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसको हमने इम्प्रूव कर लिया। एंड इफ वी ट्रेन अवर ब्रेन लाइक दिस विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड एलिफेंटाइन फोकस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर, then we can easily get a concentration. We can easily improve our concentration. Means spend a time with nature. If we spend a time with nature, then we can easily control our concentration. And we have to do meditation, like थोड़ा समाधि ध्यान लगा लो, कर लो, then we can easily get over from this all things. From the agitating mind, we can get over, we can overcome from these all things. And Lord Krishna further said in verse number 6, chapter number 6, बंधुर आत्मानं मनतस्य येन आत्मानं वजितः अनात्मस्तु शत्रु वर्ते वर्तमेव शत्रु वर्त। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, for him who has conquered the mind is best of friend. But for who has failed to do so, his very mind will be greatest enemy of that particular person. तो मतलब अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, तो we can easily overcome from all things. We can easily get concentration in our work, and we can get focused. So thank you so much. For having any question, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.